Okay, so this class is taking place on Zoom because there is some problem with our BRT system. Uh, this is the first class of fiscal policy in economics. Many new joinees are also there, both in Calcutta face to face as well as across the globe from wherever they are joining. So, welcome to the CFA classes, all the new joinees. Now, CFA is such a commonsensical designed program that mostly from any chapter, new joinees can enter. They are able to pick up the stuff. Of course, they know that they have joined at a certain point of time. उसके पहले बहुत जन ज्वाइन कर चुके, तो अकॉर्डिंगली सब जन अपने अपने यूनिक स्टाइल से पढ़ते हैं. Yesterday the results for November 25 came out. Many of you may be aware, and I'm telling you exactly what happened. That for the last 20 years I have been fighting with the CFA Institute to allow CFA program being accessed after class 12, to which they were not agreeing. After 20 years of fight, the institute finally agreed, and they changed the eligibility criteria such that class 12 के बाद students CFA L1 start कर सकते हैं. That happened in 2024. So therefore the first batch of class 12 passed out was जो लोग 2024 में board exams दिए थे. यानी so मई जून से batch start हुआ था, and they could appear either in August of the next year, यानी जिस साल क्लास 12 दिया उस साल के नेक्स्ट ईयर के अगस्त में या नवंबर में. आई वाज अ बिट कंजर्वेटिव, तो आई सेड नवंबर. अभी हमने क्लेरिफाई कर लिया अगस्त इज अलाउड. अभी जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको बोलते हैं भाई, इफ यू हैव गिवन योर बोर्ड्स देन इन द नेक्स्ट ईयर अगस्त यू कैन सेट. तो उन लोग सबको बोला गया नवंबर. ऑब्वियसली क्लास 11 12 का स्टेटस खासकर कॉमर्स में इंडिया में क्या है सबको पता है. वी स्टडी अ लिटिल बिट ऑफ इकोनॉमिक्स, demand, supply, production, cost, markets, perfect competition, monopoly. Some people have some background in mathematics, little bit of statistics, accounts, debit, credit, जोर का आता है, कॉलम बना बना के टालना. ठीक है. There is some business, organization, commerce type of subject and so on. पूरा रटने वाला अफेयर होता है कि we have to remember what the stuff is, revise it a number of times. If there are good schools and good teachers, if I can categorize them in our Indian system as good, then they will make you practice so much कि लास्ट पे जाके आपको लगेगा सब तो आता है. मैंने योर क्राइटेरिया इज डू यू रिमेंबर, दैट इज योर क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस. दोज हु रिमेंबर दे गेट ब्रिलियंट मार्क्स, ब्रिलियंट परसेंटेजेस, and those who don't, because they're not that sincere, they obviously fall back. It's a very wrong education system. CFA program में education system changes totally. Here, when you enter the class, you understand that कुछ भी याद करने का नहीं है, समझने का है, और समझने के लिए टाइम देना पड़ता है. That people don't understand. If you give time, which I will, ठीक है, I'll stop it to the topic, discuss, and then practice questions. After the class, after each chapter, test होता है, and after each topic test होता है, overall mock test होता है. If somebody says that sir मेरे को एक टॉपिक आता है because of my background, हम लोग सिंपली बोलते हैं don't do the class. अगर कोई टॉपिक आता है तो आप स्ट्रेट अवे उसका क्वेश्चंस में चले जाओ. इफ यू कैन डू द क्वेश्चंस करेक्टली, आपका 80% 90% एक्यूरेसी है, 10 में से 8 करेक्ट, 10 में से 9 करेक्ट, द क्लास इज नॉट रिक्वायर्ड. सिंपल. यदि क्लास इज नॉट नेसेसरी फॉर कॉन्करिंग द टॉपिक. द क्राइटेरिया इज कैन यू डू द क्वेश्चंस. एंड रिपीटेडली एक मिस्टेक स्टूडेंट से होता रहता है व्हेन द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर सीएफए. आफ्टर 3 or 4 months, जो बहुत सारे जिनके साथ हो रहा है यहाँ पे, जो पहले से ज्वाइन कर रखे हैं, नाउ दे आर फीलिंग दैट अब तो याद नहीं है वो, अब तो याद नहीं है वो वाला चैप्टर कितना बढ़िया से किए थे. नाउ दिस इज वंस अगेन इंडियन मेंटालिटी. आपको लग रहा है कि आपको याद होना चाहिए, जबकि वो नहीं है. हर क्लास के बाद एक ऑडियो समरी है 5 मिनट्स का जो आपसे शेयर होता है. तो कभी आप बैठे हो रिवाइज करने, तो भी आप ऑडियो समरी सुनो 5 मिनट का, क्लास नोट्स देखो, एंड दैट्स इट. उसके अलावा उससे ही बेस्ट है क्वेश्चंस करो. कल एक स्टूडेंट उससे बात कर रहा था, कई सारे स्टूडेंट से बात किया कि यार आप कैसे पढ़ते थे. तो बोला सर मैं कभी भी वीडियो लेक्चर सेकंड टाइम नहीं देखता था कोई भी चैप्टर में, कभी नहीं. आई नेवर यूज टू वॉच. आई यूज टू स्ट्रेट अवे गो टू क्वेश्चंस, एंड जीपीटी खुला रहता था. कारण कि वीडियो लेक्चर जब सुन रहे हैं ना, इट इज पैसिव. किसी का ज्ञान सुन रहे, कितने बार सुनेंगे. बट जब क्वेश्चंस कर रहे हैं,
then we are able to understand, okay, ये मेरे को नहीं पता था, एक्स्ट्रा स्टफ मिला, साफ साफ दिख जाता है क्वेश्चंस में, ये एक्स्ट्रा स्टफ था, आई डिडंट नो इट, ये तो मेरे को पता था. तो यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट यू न्यू एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा. इट डजंट हैपन इन द क्लास. Okay, of course, class required because you don't have a background in that topic. It internalizes. Okay, that's the way it is. But otherwise, questions, questions, and questions. Okay, and कोई भी question repeat नहीं आने वाले. इस exam में no questions will be repeated. But the process you will understand. If somebody asks me which is the toughest level in the CFA program, I say level 1. I'm the only person in the globe who says level 1 because level 1 में आपको पता ही नहीं ना कि what is the education type. ओके, आपको टाइम लग जाता है उसको समझने में. लेवल 2 में नो चिंता बिकॉज आपको सब पता है सीएफ प्रोग्राम कैसा है कैसा नहीं है. तो लेवल 1 टू मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड लेवल 1 इन 3 months. मैसेजेस है मेरे पास, ठीक है, तो विच इज हाईली डिस्करेज्ड बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन माइट हैव सम बैकग्राउंड. हो सकता है वो इंजीनियर था, इकोनॉमिक स्टूडेंट था, सीए स्टूडेंट था, ठीक है, तो हाई आईक्यू लेवल था, whatever था, ठीक है, मार्केट्स का एक्सपीरियंस होगा. There are others who have taken 1.5 years to complete the same. And you know something, जब मई जून 2024 में बैच स्टार्ट हुआ और जैसे इस तरह का बैच था, तो स्टूडेंट्स आके मेरे को बोलते थे, सर नवंबर तक क्यों वेट करना पड़ेगा हम लोग को, नेक्स्ट ईयर पहले नहीं दे सकते हैं क्या? दिस वॉज देयर क्वेरी. एंड वो सब के सब नवंबर का एग्जाम को डेफर करवाएं बाय पेइंग $400 विच इज मोर देन द ट्यूशन फीस. माने क्या होता है इंडिया में कमोडिटाइजेशन के नाम पे इट्स लाइक वेजिटेबल्स बिक्री हो रहा है कि CFA L1 क्लास वेदर फ्रॉम मी और somebody else is the same thing. And I feel so unfortunate about the fact that अगर हाई एजुकेशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज नॉट देयर तो फिर होगा कहाँ? इट इज अल्टीमेटली बिल्डिंग द स्टफ. सो मेरा बोलने का मतलब है $400 लाइन से लोगों ने पे किया CFA इंस्टीट्यूट को नवंबर से एग्जाम डेफर कराने के लिए फेब में या मई में. एंड दैट $400 is just gone like this. Why would we defer the exam? Okay, I'm telling you, take your time, complete 2 or 3 topics, do the questions nicely, then you know what the program is, then only register for the exam. It doesn't matter कोई CFA 3 महीना बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद बनता है as compared to the other person. It will not matter in the larger scheme of things. Your differentiation in job, in career will depend upon how deeply have you done the program. Okay, if you have done it deeply, sky is the limit. You don't require CFA plus something. Okay, it itself is sufficient for all your aspirations in life. ठीक है तो? So to you all, many of your friends might have given, once again, congratulations to all those who have cleared CFA level 1. I always say that in my classes, the pass percentage is 100%. Yes, not 99.9. And when I say so, I mean, जो स्टूडेंट मेरी क्लासेस को करेगा, लेक्चर्स करेगा, क्वेश्चंस करेगा, टेस्ट देगा, उसको मैं काउंट कर रहा हूँ. ठीक है, जो नहीं करेगा, बीच में थक जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, उसको मैं 100% में काउंट नहीं कर रहा. ठीक है तो? So, and the profile of the audience has also changed, and I'm very happy about it. CFA has become a mass product. Okay, as I see. But people जो बहुत ही मीगर मीन से हैं, जिनका पर कैपिटा इनकम इन रूपी टर्म्स माइट बी से वर्चुअली 2,50,000, 3 lakh, वैसे टाइप के families are also doing CFA, and when they are passing, the tears are in their eyes. You must have seen some videos. Okay, those type of people have also done. On the extreme end, there are very very rich family guys who know that the future lies in wealth management and creating enormous understanding of businesses. Okay, they do CFA and they do it nicely and they are able to proceed ahead. मिशिगन से, टेक्सास से लोग ज्वाइन करते हैं जिनका MBA चल रहा है, जिनका क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन चल रहा है इन द 3rd semester, 5th semester, 7th semester. They say that's यहाँ पे क्या स्टडीज हो रही है as compared to what you are teaching in CFA. Okay, there are webinars in which we have had such experiences every day. So all my initial 10 minutes ka so-called motivation is just to tell you that you are in the right place. You've chosen the right program. Can you stay dedicated? Dedicated does not mean that you have to study for 10, 15 hours and leave all your balance of life with friends, family. It just means that every day study should happen. Every day. होता है ना कोई जो जिम करते हैं कि every day you have to go to the gym. There's no other way. Every day 2 hours, 3 hours, 2 hours, 3 hours, 2 hours, 3 hours. जल्दी करना है तो 4 hours, 5 hours, और जल्दी करना है 6 hours, 7 hours. तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना. और जल्दी करना क्यों है? But if you are leaving the studies for 10, 15, 20 days,
तब गड़बड़ है. Then the train is missed. And how can you leave something which you start liking? I'll try my level best to ensure that you start liking it because I think अगर आप like करने लग गए तब किसी को कुछ ज्ञान देने का जरूरत नहीं है. Okay, things are set. Okay, as a teacher, I have taught at various levels. Uh, मतलब मेरे क्लासरूम में अभी भी, यहाँ पे फिजिकल क्लासरूम में भी होगा, और जो लोग कर रहे हैं, देर आर पीपल हु हैव कंप्लीटेड देयर सीए 10 years 15 years डाउन द रोड, एंड उनको मैं पढ़ाता हूँ इनकम स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट. उनको तो पीएल अकाउंट आता ही है, बट व्हेन वी स्टडी द एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट दे फील दैट वो ऐसे सोचना था. क्योंकि डेबिट क्रेडिट एंट्री करने से कौन सा करियर बनने वाला है? नहीं बनने वाला है. ओके, रिकॉर्ड कीपिंग करने से करियर तो बनने वाला है एनालिसिस करने से. आई हैव बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन टीचिंग पोस्ट क्लास 12 स्टूडेंट्स. ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, बिकॉज वो जो रॉ ब्रेन है ना, उसको मैं एकदम ठीक से कैरी आउट कर सकता हूँ, ये मैंने देखा है. ठीक है, लेट्स होप इट हैपेंस विद यू. आफ्टर द क्लास द फेस टू फेस स्टूडेंट्स कैन stay behind for 5-10 minutes and we can just discuss about your planning. How do you go about? ठीक है, वैसे we have detailed counseling sessions for anybody who wants to. ठीक है, so वो भी हो जाता है. एंड मेरा फोन नंबर जो पर्सनल है, आई हैव गिवन इट ऑलवेज. आई एम वंस अगेन शेयरिंग 8697090297. दैट्स माय पर्सनल नंबर इन केस यू वांट टू कॉपी द सेम. 8697090297. 8697090297. ये नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है, टेलीग्राम है. आप टेलीग्राम कर सकते हो जब भी आपको एकेडमिकली कुछ भी पूछना हो तो. ठीक है, एकेडमिक्स वाइज. बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स के लिए अदर नंबर्स हैं एंड ऑल दैट. बट पूछने के पहले मेरा सुझाव होगा खुद से रिसर्च करना, जीपीटी करना, तब पूछना तो बेटर रहेगा. विच मीन्स द डायलॉग ऑफ दिस क्लास इज, लेट मी नॉट ड्राइव द कार टू द डेस्टिनी, लेट मी शो यू हाउ टू ड्राइव एंड देन यू ड्राइव द कार एवरी डे. ठीक है, यू लीड लीड द स्टफ, डोंट लेट मी लीड, एंड यू विल फाइंड अ डिफरेंट पर्सनैलिटी विल बॉर्न. ओके, सो लेट स्टार्ट द क्लास. फिस्कल पॉलिसी इज द चैप्टर. आप चैप्टर का नाम दे सकते हैं फिस्कल पॉलिसी. सिंस वी आर लैकिंग सम सिस्टम्स टुडे, वीआरटी चल रहा नहीं है, देयरफॉर मैं स्क्रीन पे कुछ दिखाऊंगा नहीं. हमेशा मेरा फेस फेस दिखेगा जो लोग भी क्लास कर रहे हैं. ओके, बाकी अपने इंटरेक्ट करेंगे और कुछ राइटअप लिखेंगे. फिस्कल पॉलिसी. ओके, हु वाज द यूके प्राइम मिनिस्टर हु वाज इन ऑफिस फॉर द शॉर्टेस्ट stint? A UK prime minister who was there for the shortest period. Anybody would like to answer that? इसका नाम लिया आपने? नो नो नो, हिलरी क्लिंटन आपने बोला. वो तो यूएस में पहुंच गए. हाँ, नहीं, ऋषि सुनाक was for a longer period of time. Of course, we have patriotic feelings towards him. ऋषि सुनाक के ठीक पहले, I think Liz Truss. She was a female. I think she was the UK Prime Minister for 45 days. Just 45 days में खत्म. वैसे ये ग्लोबल लिटरेचर में 45 डेज ऐसे बोला जाता है, जबकि यहाँ पे तो आई थिंक इंडिया में 2 दिन या 4 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर हुए हुए. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड इन यूके इज दैट, सुना प्लीज, कोविड के बाहर आते हुए, ठीक है, मैं हमेशा कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूं सो दैट स्टडी डजंट सीम टू बी अ स्टडी. कोविड से बाहर आते हुए, एज वी एंटर 2022, you know, demand really shot up in the entire world economy. Everybody who were closed doors, they came out and they wanted to travel. The services industry boomed. Okay. And and plus the Russia-Ukraine war happened. So supply side problems happened. So number one, demand goes up. Number two, supply is constrained. कोई economics का teaching नहीं चाहिए. I asked my son who is in class 6, ठीक है, कि कोई चीज का डिमांड बढ़ गया और अगर एकदम सप्लाई कम हो गया तो उससे उस पे में क्या होगा, दाम बढ़ेगा या गिरेगा? ऑब्वियसली दाम बढ़ेगा. तो इट रिजल्टेड इन इन्फ्लेशन. आई थिंक जुलाई 2022 inflation in UK crossed 10%. Inflation in UK crossed 10%. Please let's understand the Indian perspective. इंडिया में 10% से ऊपर inflation is considered to be havoc. The reason why the Manmohan Singh government collapsed in 2012, the main reason was high inflation. We reached inflation of around 12%, 13% during the Manmohan Singh regime.
ओके, एंड मोदी का बिगेस्ट प्रचार उस समय जो था, दैट वाज इन्फ्लेशन वाला इश्यू। समझ गए? सो इन्फ्लेशन अपने कंट्री में 10% से ऊपर बहुत बड़ा वो माना जाता है। तो वो जो बड़े लोग हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज, यूएस, यूके, उनमें तो वी डोंट एक्सपेक्ट सच हाई इन्फ्लेशन, 10% से ऊपर इन्फ्लेशन। इन सच अ सिचुएशन, जब इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, द इकोनॉमी इज वेरी हॉट, एंड द इकोनॉमी इज वेरी हॉट, then policymakers will follow contractionary policy or expansionary policy. Policymakers will follow contractionary policy or expansionary policy. Contractionary policy यूजुअली क्लास में हैबिट होता है टीचर का सेकंड स्टेटमेंट को बोलना, तो मैं बहुत बार इससे खेलता हूं कि मेरा सेकंड वाला वर्ड राइट नहीं होगा। ठीक है, तो आई डेंट से एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, आई सेड कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी। आंसर इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शनरी। प्लीज इमेजिन अ थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट जो होटल रूम्स वगैरह में रहते हैं ना, टेम्परेचर दिखता रहता है, क्या टेम्परेचर है, इट इज सेट एट 22 डिग्री सपोज। और जब भी टेम्परेचर नीचे गिरेगा से 18 डिग्री टाइप, तो उस समय हीटर ऑन हो जाएगा। टेम्परेचर ऊपर जाएगा 24, 25, 26, तो इन दैट केस हीटर ऑफ हो जाएगा। तो थर्मोस्टैट इज देयर टू ऑटोमेटिकली रेगुलेट द टेम्परेचर इन द रूम ना। वैसे ही पॉलिसी मेकिंग इज ऑल अबाउट acting as a thermostat in the economy. We don't want the economy to be too hot. Too hot means too inflation. हम लोग नहीं चाहते ऐसा। अगर ऐसा हुआ तो we'll cool down the economy, पानी छिड़क के। We don't want the economy to be too cold and large scale unemployment, कोई डिमांड ही नहीं है, वैसा भी नहीं चाहते। अगर वैसा हुआ, we will pump prime the economy, boost it. This is called counter cyclical aggregate demand management. What? काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट। तो इसमें दो वर्ड्स आया, एक तो काउंटर सिक्लिकल और एक एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन, बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो फुल फॉर्म इज ओके विथ यू? C plus I plus G plus X minus M. Consumption, investment, government expenditure, export and import. That's aggregate demand in the economy. ये aggregate demand in the economy जो है वो fluctuate करता रहता है। ओके, बूम रिसेशन, बूम रिसेशन। अपने चाहते हैं तो बूम पीरियड्स है ना, दे शुड नॉट बी वेरी एक्सट्रीम, बिकॉज बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, विच विल हर्ट पीपल विथ फिक्स्ड इनकम। वी डोंट वांट रिसेशन टू बी डीप एंड लॉन्ग लिव्ड, कि जहां पे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ठीक है, एंड देयर इज हार्डशिप इन द इकोनॉमी। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। वी वांट दैट देयर शुड बी स्मूथनिंग ऑफ द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल ऐसा हो, ऐसा ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा इकोनॉमी का, वी हैव टू फॉलो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। जैसे ही रिसेशन हुआ, वी हैव टू फॉलो व्हाट? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। दिस इज कॉल्ड काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट। क्या? काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट। ये टर्म आपको लिख के नहीं आना है, इट इज नॉट अ रिटन एग्जाम, इट्स अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम। बट ये टर्म इंट्यूटिव है, मेरे को नहीं लगता है इस टर्म को लर्न करना पड़ेगा। दिस इज एन इंट्यूटिव टर्म। ओके, काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट। ओके, so there is something called fiscal policy and there is something called monetary policy. Fiscal policy, monetary policy. मेरा स्टाफ बोल रहा है सुधीर वीआरटी ठीक हो गया है। तो वीआरटी ठीक हो गया तो चालू कर दो, कैमरा तो नहीं लेगा मेरा। अब हम आज इसको हाथ नहीं लगा रहे हैं सिस्टम्स वगैरह पे। ठीक है, अदर्स ऑल्सो हु हैव ज्वाइंड ऑनलाइन, वो लोग चाहे तो नॉर्मल यूलन ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। माय स्टाफ इज सेइंग दैट वीआरटी ठीक हो गया। ठीक है, सभी जन ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है मैं जूम को बंद कर दूंगा, बिकॉज जूम में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत सुंदर सुंदर इंटरेक्शन होता है लाइव क्लासेस में, मतलब फेस टू फेस स्टूडेंट्स को मजा आ जाता है ऑफ द टाइप ऑफ स्टफ दैट इज रिटन ऑन द सीट। आई कांट टेल यू। सो नो इश्यूज। सो आई वाज सेइंग दैट एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिस्कल, ये वर्ड जनरली लोगों का सुना रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, इवन साइंस बैकग्राउंड पीपल। Which policy, monetary or fiscal, deals with regulation of interest rate in the economy? Interest rate, monetary। इंटरेस्ट रेट जो है ना,
उसको कंट्रोल करना वो सेंट्रल बैंक का प्राइमरी पर्पस है, इंटरेस्ट रेट। सर क्या फिस्कल पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट अफेक्टेड नहीं होता है? होता है, बट इंटरेस्ट रेट पे फोकस किसका होता है? आरबीआई का। ओके, व्हेन यू हियर अबाउट रेपो रेट and all that stuff, it's dealing with the RBI, the central bank. When you talk about the budget, जो फेब में आता है, we are dealing with which policy? Fiscal policy. So, fiscal policy में गवर्नमेंट का फीलिंग आ रहा है, मिनिस्ट्री का फीलिंग आ रहा है, मोदी जी का फीलिंग आ रहा है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी में अपने को सेंट्रल बैंक आरबीआई का फीलिंग आ रहा है। आई एम गोइंग वेरी रॉ, ठीक है, जिसको अज्यूम नहीं कर रहा। ये चैप्टर फिस्कल पॉलिसी है, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी। व्हाट? प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मींस लो स्टेबल इन्फ्लेशन। क्या? वी हैव टू स्टार्ट करना पड़ेगा, तो क्लास स्टार्ट कर दो। वो ठीक है, वो करेगा, बैठ बैठ। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार सुनेंगे आप, सुनते ही रहेंगे आने वाले क्लासेस में। प्राइस स्टेबिलिटी मींस जीरो इन्फ्लेशन, या फिर इट मींस लो स्टेबल इन्फ्लेशन। लो स्टेबल इन्फ्लेशन, जीरो इन्फ्लेशन नहीं। प्राइस स्टेबिलिटी मींस लो स्टेबल इन्फ्लेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो स्टेबल इन्फ्लेशन? लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया में मोदी गवर्नमेंट जिसको अपने बोलते हैं, और खासकर यंगस्टर्स बिलीव करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक्स नहीं आता है। Okay, because according to the young population, only those who can speak sophisticated, hi-fi English, they are the ones who have taken the flagship of economics. Okay, the likes of Dr. Raghuram Rajan, who can speak on the podium of IMF, okay, in a sophisticated manner, तो लगेगा ज़्यादा बुद्धिमानी से बोल रहे हैं, which is not true. The first thing that the Modi government did when it came to power, 2013-14, is that it started the unequivocal objective of RBI in India, which is price stability. बोला multiple objective नहीं, एक objective है, price stability. There is a 5-year contract entered between the RBI and the government of India. According to that contract, India में inflation का target 4% है। क्या है? 4%. I'm not giving example, mean कर रहा हूँ। Inflation as per CPI in India got to be 4% with a band of plus minus 2% around it. You should know it. ठीक है, अपने CFA प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, पर पढ़ते हैं विद एन इंडियन वर्जन, सो दैट वी नो द इंडियन वर्जन टाइप ऑफ इट आल्सो। 4 + -2, यानी आरबीआई ने वादा किया है कि इन्फ्लेशन इन इंडिया विल नॉट गो अबव 6, इट विल नॉट गो डाउन बिलो 2, इट विल नॉट गो अबव 6, इट विल नॉट गो डाउन बिलो 2. If for 3 consecutive quarters inflation in India breaches 6% on the upside or breaches 2% on the downside, it is a violation of that contract entered by RBI with the government of India, which is not allowed. Understood? तो प्राइस स्टेबिलिटी का इंडिया में ये डेफिनेशन है। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है यूएस वगैरह, यूएस में प्राइस स्टेबिलिटी का डेफिनेशन है 2%, दैट इज द इन्फ्लेशन टारगेट। एंड alas, unfortunate, those great people, उनमें इन्फ्लेशन लास्ट 3 साल से टारगेट अचीव नहीं हुए। स्टिल नाउ इट इज ग्रेटर देन 2%, समवेयर अराउंड 2.75 या 3% होगा इन्फ्लेशन, और चला गया था 5-6% तक। ठीक है, तो एवरीथिंग इज नॉट वेरी बैड ओवर हियर. We are more disciplined as compared to what they are. Their interest expenditure right now is more than the defense budget. The interest that US pays right now is more than the defense budget. That is the fiscal indiscipline they are sitting upon. Okay, it's like a slow, very slow ticking time bomb, which they are able to manage with the help of all those can't that they've done in the past, the Hiroshima, Nagasaki. ठीक है कि भाई हमारे पास बॉम्ब है, तुम्हारे पास क्या है, whatever. Anyways, तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी. फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में सब प्राइस स्टेबिलिटी नहीं आया क्या? आया है, प्राइस स्टेबिलिटी भी है, एट द सेम टाइम पॉजिटिव स्टेबल ग्रोथ. क्या? पॉजिटिव स्टेबल ग्रोथ. वैसे मॉनेटरी भी चाहता है, वैसे बोलूं तो दोनों का ही दोनों ऑब्जेक्टिव है, पर तुम अगर फोकस बोलोगे ना, सब फोकस, तो मॉनेटरी का फोकस प्राइस स्टेबिलिटी पे है, ग्रोथ पे कम है, ये बोलना गलत हुआ, ग्रोथ पे नहीं है. फिस्कल का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ पे ज्यादा है, प्राइस स्टेबिलिटी पे मॉनेटरी के मुकाबले कम है.
अंडरस्टूड? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्मूदन बिजनेस साइकिल, काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट. क्या बोला? काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट. ओके. देवांश बंसल बोल रहा है ही वांट्स नोबेल पीस प्राइज. किसके बारे में बोला होगा? और ट्रम्प के बारे में बोला होगा. ठीक है. सो there are 4 or 5 LOS in this chapter. मेरे को याद नहीं है. There's something called LOS, Learning Outcome Statement, LOS. कि अपने को इस चैप्टर में क्या क्या जानना है. उनमें से एक LOS एकदम मुफ्त का LOS है, वो कंप्लीट कराना चाह रहा हूँ. वो है रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी. रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी. तो पहला रोल ये है कि ये जो बिजनेस साइकिल है ना, इसको ऐसे करना. स्मूदन आउट बिजनेस साइकिल. इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जीडीपी को इन्फ्लुएंस करना, उसको स्मूदन आउट करना. ठीक है. काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट. दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रोल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. ठीक है. इसको वन वर्ड याद रखिए तो स्टेबलाइजेशन. क्या? स्टेबलाइजेशन. वन वर्ड हो गया स्टेबलाइजेशन. ठीक है. सेकेंड रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज redistribution of income and wealth. Redistribution of income and wealth. जो लोग का जॉब चला गया है बिकॉज ऑफ रिसेशन, वो तो उनका गलती नहीं है कि रिसेशन हो गया. इफ यू हैव लॉस्ट योर जॉब ड्यू टू रिसेशन, द गवर्नमेंट शुड पे चेक्स टू यू सो दैट यू कैन एटलीस्ट लिव. इफ यू हैव बिकम डिसेबल्ड, कोई एक्सीडेंट हो गया and you are not able to earn, the government should provide social security. You have retired and therefore now you are not earning, the government should provide you pension payments. Okay? तो जो लोग नीडी है, जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनको ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ओके, ये पर्पस है गवर्नमेंट का. यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी और सोशल जस्टिस. एफिशिएंसी अलग चीज हो गया. यहां पे आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट? सोशल जस्टिस. तो सोशल जस्टिस का मतलब हो गया इक्विटी. वी आर टॉकिंग अबाउट फेयरनेस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी. आई मीन टू से इफ देयर इज अ स्टूडेंट यहां पे जो क्लास 12 पास किया है और एक स्टूडेंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों के दोनों CFA L1 एग्जाम दे रहे हैं, तो इन दैट केस देखा जाए तो इक्वालिटी है कि इक्वालिटी नहीं है? नहीं है. वो ज्यादा जानते हैं. Therefore इक्वालिटी लाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट क्लास 12 दिया है उसके पास फुल टाइम स्टूडेंट है, पढ़ने का समय है. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सुबह से रात तक काम कर रहा है, उसके पास 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने का टाइम है. आपको हो सकता है 800-900 आवर्स लगेगा, उसको हो सकता है 400-500 आवर्स लगेगा. आप हो सकता है क्लासेस को 1 की स्पीड पे या 1.25 स्पीड पे सुनोगे, वो हो सकता है क्लास को 1.5 या 1.75 स्पीड पे सुनेगा. ठीक है. तो देयर आर डिफरेंट वेज. फेयरनेस का मतलब होता है जो लोग नीडी हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, उनका मदद करना. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. What is the income tax rate that we pay in India? Anybody wants to speak out? Slabs होता है ना, ये तो पता है सबको. Up to this no tax. इसके ऊपर 10%, 20%, doesn't matter अभी क्या है. जिसको पता है अभी क्या है वो झंडा नहीं उछाले. देख मेरे को पता है, बिकॉज जो तेरे को पता है उससे कोई फायदा नहीं है. इसी के मैं अगेंस्ट में हूं. Anybody remembering figures, remembering numbers is of no usefulness in this world, at least where AI is there. The fact that, okay, sir, we have a progressive tax structure or a regressive tax structure. Progressive tax structure. Higher income pay higher tax, lower income pay lower tax. What is this? Fairness. What is this? Fairness. When we talk about fairness, it talks about horizontal equality and vertical inequality. Horizontal equality and vertical inequality. Horizontal equality means people in the same situation should be exposed to the same terms. Vertical inequality means that people in different situations should not be exposed to the same terms. Understood? The rich cannot complain that ये तो गलत है ना यार, हम लोग के ऊपर टैक्स रेट ज्यादा है. गलत नहीं है, तुम रिच हो. At the same time इसको एक्सट्रीम में नहीं ले जाना है कि तुम 100% टैक्स दो, because case में it will act as a disincentive to work. Why are you sitting over here? You are sitting over here to build a solid career in finance. Why? Because you want to earn. You want to amass wealth.
Okay, that is why you are sitting over here. Let's understand, our culture has many times not respected money and wealth. That's a very very big mistake. If somebody says मेरे बारे में sir बहुत professional हैं, I take it as a compliment. I think you should be studying from a professional. You should be understanding that somebody who values business, who values money making, who values wealth making. ठीक है, because वही आपको भी करना है. ठीक है, it has to be as explicit. सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में ऐसा नहीं हो जाए कि फेयरनेस के चक्कर में जो अमीर है उसको इतना ज्यादा टैक्सेशन कर दें कि कोई अमीर होना ही नहीं चाहता है. आराम करेंगे ना, क्या जरूरत है कमाने का, 60% गवर्नमेंट को देंगे. ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए. बट यस, अ बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक. सेकेंड फंक्शन था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. वर्ड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन. क्या फर्स्ट वर्ड क्या था? स्टेबलाइजेशन. अब मैं इंडियन सिस्टम की जैसे याद करवा रहा हूँ, विच इज बैड, पर थोड़ा थोड़ा बीच में आएगा वो, क्या करूं, है तो इंडियन टीचर ही ना. तो वन इज स्टेबलाइजेशन एंड द सेकंड इज व्हाट? रीडिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से जरा सा स्मेल उसका आया, रिजर्वेशन वगैरह का जो बात होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से जरा सा स्मेल रिजर्वेशन का आया कि ये जो कास्ट है इसके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए वगैरह. ये फीलिंग आया कि नहीं आया? आया. रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन उसका कॉन्स क्या है? CONS, कॉन्स तो है ही उसका भी. उसका कॉन्स ये है कि सर जो अनडिजर्विंग लोग हैं, अगर वो लोग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं तो उससे एफिशिएंसी हर्ट होगा. क्या एफिशिएंसी? मतलब एक पर्सन हु इज केपेबल टू डू थिंग्स नाइसली, अगर उसको अपने नहीं मौका दे रहे हैं, किसी और को अपने मौका दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो काम खराब से करेगा, एफिशिएंसी हर्ट होगा. ये जो एफिशिएंसी वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. क्या? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. अब आ रहे हैं प्योर क्लास 11-12 इकोनॉमिक्स में. मैं 2 मिनट में आने वाला हूं. वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड. ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. देयरफॉर वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर वांट्स एंड वी हैव टू यूज आवर रिसोर्सेस, allocate them in such a manner that our prioritized wants are optimally satisfied. This is perhaps the scarcity definition of economics by somebody called Lionel Robbins. देखो मेरा कितना अच्छे से रटा हुआ है क्लास 11-12 का. Okay, I gave my 12th का board examinations in 94. ठीक है, this is what 2026. ठीक है, तो 4 डेफिनेशन लर्न कराया जाता था हम लोग को. एक वेल्थ डेफिनेशन, एक वेलफेयर डेफिनेशन, एक स्केर्सिटी डेफिनेशन, एक ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. आई डोंट नो अभी है क्या, +2 का इकोनॉमिक्स आई एम नॉट टीचिंग. है क्या ये? हाँ, कई सारे बोर्ड में है. कौन से बोर्ड से हो तुम? ISC. 11 में क्या? ओके, 12, 11, 12 व्हाटएवर. ठीक है, तो स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स होता है कि जहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करें. तो कंट्री में रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नो डाउट अबाउट इट. वो resources should go into the production of tobacco or should it go into the production of milk? What should it go into? That decision in a market-based economy is taken by the market players. In a centrally planned economy, it is taken by the government. But definitely government to some extent, even in a market-based economy, directs resources. जैसे US हाथ धो के एक चीज के पीछे पड़ा है, AI. क्या है? तन मन धन अपना सब AI में लगा दिए है, सारा रिसोर्सेज को. बिकॉज दिस इज द सेवियर. मे बी जो अपने हाई फिस्कल डेफिसिट का US का बात कर रहे हैं ना, कितना हाई फिस्कल डेफिसिट है, दे फाइंड दैट मे बी दिस इज द पुनेशिया ऑफ ऑल रेमेडीज. ये उनको वापस से ले जाएगा एक स्वीट स्पॉट में. ठीक है, एंड द मसल पावर. ठीक है, एंड इट मे वेरी वेल हैपन. यू नो, देयर आर नैरेटिव्स अबाउट द फैक्ट दैट US डूब जाएगा, ट्रम्प क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया वगैरह वगैरह. बट द अदर पार्ट व्हिच इज हैपनिंग इज द टेक्नोलॉजी पार्ट and the might of their army and whatever the tech. So that is something that may save them. So the fact that India को किस चीज में एनर्जी लगाना चाहिए, द फैक्ट दैट वी वेंट फॉर डिजिटाइजेशन. यू मे रिमेंबर ऑल दैट टाइम जब अचानक से व्हेन वी टॉक अबाउट डीमोनेटाइजेशन से डिजिटाइजेशन स्टार्ट हो गया था, एंड ऑल ओवर द प्लेस देयर वाज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कि मोदी जी क्या बोले थे. ठीक है, और देखो अब तो डिजिटाइजेशन में आ गए. बट डिजिटाइजेशन वाज अ वंडरफुल थिंग दैट हैपेंड इन इंडिया. इट जस्ट स्केल्ड अप एफिशिएंसी लेवल्स. It changed the composition of the black and white economy. Okay, and
Things cannot happen overnight. Now we can't become a US or a Japan, okay, in 5 years or 10 years time. But things have definitely been moving in the correct direction. So resource allocation becomes a very, very important issue. Why did all the PSU stocks do very well, especially the defense-related stocks? You must be aware at least of that. कि defense-related stocks ने क्या phenomenal performance किया, because the Modi government decided that India should not be an importer of arms; it should be an exporter. इजरायली टेक्नोलॉजी यूज करके वगैरह, तो हमने एलोकेट किया रिसोर्सेज ना टुवर्ड्स डिफेंस, ठीक है। तो ये जो एलोकेशन डिसीजन है, किसका डिसीजन होता है? गवर्नमेंट का। तो 3 वर्ड हो गया, स्टेबलाइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन। इन तीनों में से कौन सा वर्ड फोकसेस ऑन एफिशिएंसी? एलोकेशन। सही चीज में जाए, सही चीज। ओके, ह्यूमन इज द, माने ह्यूमन लेबर इज द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स एंड इट शुड गो इनटू द करेक्ट काम में, उसके बाद अदर रिसोर्सेस। तो एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब गरीब को देखना, पिछड़े को देखना, और क्या बोलते हैं फर्स्ट वाला क्या था? स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। रिसेशन शुड नॉट बी डीप, बूम शुड नॉट बी डीप, ठीक है। तो देयर आर 3 रोल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को डिफाइन करूं तो इट रेफर्स टू गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स spending and taxation policies with a view to stabilize economic activity, with a view to fairly redistribute income and wealth, and with a view to allocate scarce resources efficiently. You should not be having the ability to speak out this sentence कि देख मैं बोल पा रही हूं, तुम नहीं बोल पा रहे हो। बोल पाने का कोई जरूरत नहीं है, फील इज इनफ। मल्टीपल चॉइस में फील कम आ जाता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट एंड द प्राइस ऑफ क्रेडिट। क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मतलब मनी सप्लाई, प्राइस ऑफ क्रेडिट मतलब इंटरेस्ट रेट। क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट एंड प्राइस ऑफ क्रेडिट, ओके, मेनली फोकसिंग ऑन प्राइस स्टेबिलिटी, लो स्टेबल inflation, and we want positive stable growth। क्या? low stable inflation, positive stable growth। ग्रोथ में लो ग्रोथ नहीं बोले, हाई ग्रोथ तो क्या हट जाए? लो स्टेबल इन्फ्लेशन, पॉजिटिव स्टेबल ग्रोथ, ये दोनों का ही ऑब्जेक्टिव है फिस्कल मॉनेटरी का। बट फिस्कल का मोर टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन है, मॉनेटरी का मोर टुवर्ड्स प्राइस स्टेबिलिटी है, ठीक है। और उसके अलावा फिस्कल का और भी है विच इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। मॉनेटरी कोई मतलब नहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन से, एंड फिस्कल का और एक है विच इज व्हाट? एलोकेशन, ठीक है। तो इससे अपना 2 LOS हो गया है। फर्स्ट LOS इज कंपेयर मॉनेटरी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी। सेकेंड LOS इज रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फर्स्ट LOS इज व्हाट? कंपेयर मॉनेटरी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी। ऐसा पर नींद में आंसर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा हो गया रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये दोनों कवर किए अपने। यू नो क्या होता है? सपोज ये दोनों आपने कर लिया, नोट्स भी देख लिया, पूरा याद है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे ना, तो मैं बोल रहा हूं अपने बारे में, तुम्हारे बारे में नहीं। आई कैन डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रॉन्ग। एक तो है, या तो मैं घर से देख के आया हूं तो रॉन्ग करूंगा कैसे, जो मेरा काम है नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव लैक इन लाइफ। यू कैन आस्क स्टूडेंट्स दैट बैक क्लास में मल्टीपल चॉइस मेरे से रॉन्ग होता है व्हेन आई डू इट, तो आप तो हो ही क्या, बिकॉज मल्टीपल चॉइस में कैसे घुमाएगा ना, यू नेवर नो। तो रिस्पेक्ट द मल्टीपल चॉइस लाइक एनीथिंग, इट विल गिव यू डीपर डिस्कशन। ओके, इस तरह से पूछेगा तो ऐसे बोलना है, इट्स वेरी ऑथर स्पेसिफिक, अंडरस्टूड। इफ समबडी आस्क्स मी सर कोर रीडिंग को रीड करना पड़ेगा क्या, जरूरी है क्या, द आंसर इज नो। बट इफ यू हैव अ ट्रेमेंडस रीडिंग हैबिट, गो फॉर इट, बट उससे बेटर आप अचीव करोगे जीपीटी के थ्रू। Instead of co-reading, if you use GPT for your preparation, that's much better, much more interactive, much more customized. It's happening according to you. ठीक है, तो co-reading का जमाना गया, that was the पुराना जमाना, ठीक है। तो use more and more GPT, वैसे say GPT, obviously Gemini, Perplexity, whatever you want to, ठीक है ना। ओके, अंश लांभा बोल रहे हैं मुझे भी सब याद है। थोड़ा देर पहले बोले थे, क्या चीज का बोला वो, क्या याद है उसको सब कुछ? डेफिनेशन, ओ 11-12 वाला, करेक्ट। ओके, तो सुधांशु दे, अंश लांबा, प्रिया, ठीक है। क्लास अब आ रही है VRT पे, आप लोग का कमेंट्स भी दिख रहा है, ठीक है। आज काफी जोश में, काफी क्लास भरा भरा है,
धीरे धीरे जोश ठंडा होता रहता है और लोग सोचते हैं घर पे कर लेंगे, क्लास कर सकते, कोई इशू नहीं, आई एम टोटली इन फेवर। हाँ मैं बता दूं एक बार, कल अगर मेरा से 25 स्टूडेंट से बात हुआ होगा ना, इंक्लूडिंग द फैमिली, मम्मी पापा किसी को मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है, तो इन दैट केस उनमें से 60-70% वे दो स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइव क्लास जनरली नहीं किया था। मैं लाइव बोल रहा हूँ, फेस टू फेस नहीं, मतलब कैलकाटा क्राउड तो इन द लार्जर ऑडियंस, लेट मी टेल यू, वी आर टीचिंग मोर आउट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स एज कंपेयर्ड टू कैलकाटा स्टूडेंट्स। Okay, our out of India students are more than Calcutta. It is not even 1% of our TAM. ठीक है तो, but still we are in Calcutta, ममता दीदी की कृपा से, ठीक है, we have deep respect for the same. So face to face class करो बहुत अच्छा, very good, ठीक है, live class करो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए तो in that case discipline comes into question, because face to face या live में करने से ना discipline रहेगा. There was a guy called Kaushik Shah, जिन्होंने लेक्चर सुनना चालू किया, आप उसका नाम सुनोगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग, बिलीव मी, कोई एक क्वेश्चन का आंसर तो राइट देगा ना, एंड आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शाउटिंग टू द पिच ऑफ माय वॉइस कि यार क्या कर रहे हो कौशिक शाह, बट एक भी क्लास मिस नहीं कर और जवाब देते जा रहा है, शर्म नहीं है, जे देते जाएगा वो जवाब। 6 महीने बाद मैंने बोला कि आज मैं गारंटी कर रहा हूं तुमको कि कौशिक शाह पास होगा। आई टोल्ड एवरीवन, बिकॉज एवरीबडी विल बिलीव दैट सही है, पास नहीं होने वाला है। आई सेड आई एम, मेरा वीडियो होगा वो रिकॉर्ड, तुम लोग वो वीडियो सुनोगे घर पे, कि मेरा आई गारंटीड दैट कौशिक शाह विल पास द एग्जाम, बिकॉज वो मेरे को टाइम दे रहा है, इम्पॉसिबल है। तब तो फिर मेरे को त्याग देना चाहिए पढ़ाना, कि somebody who is watching my classes and doing the questions and mocks, he is not able to pass, I don't have the right to teach, believe me, it will be unfair, ठीक है। सो एनीबडी वरिड अबाउट द फैक्ट दैट सर मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, मैंने उस तरह का एवरेजिंग मेरे को तो पसंद ही नहीं है लेबलिंग, यू डू द क्लास एंड शो मी हाउ यू कैन फेल, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो सो वन कैन सूट योर वन सेल्फ। जब अपने रिकॉर्डेड क्लास सुनते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है, 1.25 स्पीड, 1.5 स्पीड, एक बार स्लो किए, चाय पी के आए, नीचे ऊपर गए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं पुशअप कर लिए 10, उसके बाद वापस से बैठे, या करना ही चाहिए, ठीक है, मतलब there's a different type of जोश that should happen when you are studying for the program. हनी चंचलानी तो हनी चंचलानी इस बैच की स्टूडेंट है। हाय हनी, होप यू आर डूइंग वेल। एथिक्स से स्टार्ट हुआ था ये वाला बैच, ओके, एथिक्स से, एंड हनी का जो मिस्टेक हो रहा था एथिक्स में, गॉड, बट अभी मैंने इट हैज बीन 4 months आई थिंक, मई जून से जो बैच स्टार्ट हुआ, अल्टीमेटली शी हैज चेंज्ड, अभी उनका आंसर सारा राइट आता है, तो इट रियली मतलब गेट इनटू द ग्रूव ऑफ इट वाला बात हो जाता है। एनीवेज, सो वी हैव कवर्ड 2 LOS, लेट्स स्टार्ट राइटिंग, समराइज कर लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी, LOS A, first learning outcome statement, LOS A, comparison between monetary and fiscal policy, comparison between monetary and fiscal policy, comparison between monetary and fiscal policy, dash. Point number 1, monetary policy refers to central banks policy of influencing, लैंग्वेज पे ध्यान देना, of influencing the quantity of credit bracket money supply, the quantity of credit bracket money supply bracket close, and the price of credit bracket interest rate, the price of credit bracket interest rate in an economy with primary focus on price stability,
with primary focus on price stability. With primary focus on price stability. Full stop. अगर क्लास में कुछ डिक्टेशन में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इश्यूज मिस हो जाए तो डोंट हैव टू वरी. हर दिन क्लास के बाद जो क्लास का नोट्स है ना वो ड्राइव पे शेयर होते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से नोट्स को देख सकते हैं एंड द नोट्स आर वंडरफुल. देयर इज अ स्टूडेंट इन आवर क्लास हु हैड स्टडीड सीए विद मी, शुभकांत उपाध्याय. इतना वंडरफुल नोट्स वो शेयर करता है, नॉट सेइंग इट इन टर्म्स ऑफ हैंड राइटिंग कि मोतियों से अक्षर, विच आई डोंट केयर. द स्टफ, द इनसाइड, द कंटेंट, ही एड्स सम कंटेंट टू इट व्हिच आई माइट हैव मिस्ड, ठीक है? तो बिकॉज ऑब्वियसली मैं कुछ किताब खोल के तो पढ़ा रहा नहीं हूँ, तो ही एड्स अ लॉट एंड एवरीबडी शुड रेफर टू द नोट्स वंस कि अपने नोट्स को और ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है? तो सो आदर्श केडिया, प्रखर गुप्ता, इनके कुछ मिस हो गए ना तो मैं रिपीट भी कैसे करूँ, बिकॉज मैंने डेफिनेशन जस्ट बोलते हुए बोला उस समय, ठीक है ना? इसमें डेफिनेशन में जो कॉर्नर पार्ट है जहां पे मैं आपका फोकस चाहूंगा ना, जहां पे आपका फोकस छूट जाएगा, वो है इन्फ्लुएंसिंग. सर्कल द वर्ड इन्फ्लुएंसिंग. सर्कल द वर्ड इन्फ्लुएंसिंग. मैं इन्फ्लुएंसिंग के बदले डिटर्मिनिंग लिखा सकता था. थिंक अबाउट इट. rather than dictating influencing, I could have dictated the word determining, but I dictated the word influencing. इसका मतलब समझे कि क्या सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई कंट्रोल कर रहा है, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर रहा है, या वो इन्फ्लुएंस कर रहा है? इन्फ्लुएंस समझो. RBI does not fix the money supply in the Indian economy. It cannot. It doesn't have the औकात, but it influences the same. RBI cannot fix interest rate in the Indian economy. It doesn't have the औकात. I mean it. It can influence the same. Why do I say so? Because money supply is also a function of the habits of people. लोग कितना कैश कैरी करते हैं, कितना बैंक में रखते हैं. अगर कैश कैरी करने का कल्चर ज़्यादा है तो RBI मनी क्रिएशन ज़्यादा कर नहीं पाएगा. बहुत जन का ये 11-12 में किया हुआ होगा, मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट क्रिएशन में, ठीक है? बट मैं इलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग मॉनेटरी पॉलिसी राइट नाउ, ठीक है? वैसे RBI कोई फिक्स नहीं करता है इंटरेस्ट रेट अब से ये होगा. RBI रेपो रेट और मेजर्स से उसको इन्फ्लुएंस करता है, विच इज देयर इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? तो इन्फ्लुएंस, क्वांटिटी ऑफ मनी माने मनी सप्लाई, प्राइस ऑफ मनी मतलब हो गया इंटरेस्ट रेट. टू इन्फ्लुएंस फॉर प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस स्टेबिलिटी को सर्कल कर दो और प्राइस स्टेबिलिटी से एरो दे के लिख दो. वर्ड याद है क्या था? डैश डैश इन्फ्लेशन. लो स्टेबल इन्फ्लेशन लिख दो. लो स्टेबल इन्फ्लेशन. लो स्टेबल इन्फ्लेशन का मैंने मतलब ही बताया था. इंडिया में इट्स 4 ± 2. US में इट्स 2 ± what I don't remember. Okay, इंडिया में इट्स 4 ± 2. US में इट्स 2. 2 इज द टारगेट इन्फ्लेशन, ये मेरे को याद है. बट प्लस माइनस क्या है ना, है भी क्या वो लोग कि हमको नहीं पता, बिकॉज होता तो ब्रीच हो चुका है. ओके, 3 सालों में. पैरा चेंज. Fiscal policy refers to government's policy. Fiscal policy refers to government's policy on spending and taxation. Government's policy on spending and taxation. Feel the language, please. Don't write it for dictation. On spending and taxation. To influence economic activity. To influence economic activity. To influence economic activity. Comma. To influence economic activity, comma. Redistribute income and wealth. To influence economic activity, comma. Redistribute income and wealth. And to allocate resources efficiently. And to allocate resources efficiently. And to allocate resources efficiently. Efficiently. Full stop. Para change. Point number 2. Both monetary and fiscal policy
both monetary and fiscal policy aim at dash के बाद next line, first bullet, positive stable growth, second bullet, low stable inflation, para change. However, price stability is the major thrust area of monetary policy. While economic stability that is smoothening business cycle, is the major thrust area of fiscal policy. Smoothening business cycle is the major thrust area of fiscal policy. Full stop. अब ये जो लिखा है ना, इसकी वजह से एक दिक्कत होती है बाद में, मल्टीपल चॉइस वाइज कोई स्टूडेंट का रॉन्ग हो जाएगा, जो पूरा मेरे पे डिपेंडेंट हो गया अगर मैं इतना ही लिखाया तो। कैसे? आपको फोकस गया कि सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी करता है और गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी करता है। जैसे अपने मैच द फॉलोइंग लर्न करते हैं ना इंडिया में, वैसे लर्न कर लिए। द पॉइंट इज दैट लूजली स्पीकिंग सेंट्रल बैंक जो है वो भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। सेंट्रल बैंक जो है इट इज नॉट अलूफ फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट्स गवर्नमेंट का पार्ट ओनली इफ वी स्पीक इट ऑन अ होलिस्टिक बेसिस। तो कई बार इन द नेक्स्ट चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी में यू विल फाइंड दैट सेंट्रल बैंक वर्ड के बजाय गवर्नमेंट वर्ड दिया रहेगा। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कट इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रेज मनी सप्लाई, एंड इफ समबडी इज रियली पिकिंग अप द वर्ड्स ही विल से दैट सही तो रॉन्ग लिखा है, सेंट्रल बैंक लिखना चाहिए था। तो डोंट बी दैट हार्ड टुवर्ड्स द लैंग्वेज। ओके, सेंट्रल बैंक के बदले गवर्नमेंट वर्ड जो है मॉनेटरी पॉलिसी में यूज हो सकता है, खासकर नेक्स्ट चैप्टर में। नंबर वन, आई वांट टू बी क्लियर अबाउट दैट। अब जब मैं बोल ही दिया इसके बारे में तो एक फायदा उठा लो, बिकॉज ऑफ द 2 minutes टाइम वेस्टेज व्हिच हैज हैपेंड। दैट्स आप बोल रहे हैं सेंट्रल बैंक तो गवर्नमेंट ही है, तो इसका मतलब क्या इंडिया में मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी, अमित शाह, दे डिक्टेट अफेयर्स टू द आरबीआई दैट अब आप रेपो रेट कट करो, अब आप हाइक करो, वगैरह वगैरह। लेट मी आंसर फ्रैंकली, जैसे कि मैं ऐसा नहीं टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूं। रघुराम राजन जो है उसको निकाला गया 2000 and maybe 15-16 में was the period where he was thrown out. It's a hard language but it was a fact. He was thrown out. उसका थ्रो आउट का उस समय तो मेरे को समझ में नहीं आया। I was foolish at that time. Even in spite of being a teacher, because I was too much impressed by his articulate English language portrayal of economics knowledge. But later on what he has done from 2015-16 से लेके अभी तक, उनका जो भी ट्विटर पे और जो भी कमेंट्स होता है ना, none of the comments are pro India. Not a single comment you will find. जो भी चीज़ अपने कंट्री में हो रहा है खराब हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो अच्छा हो रहा होगा भाई। You are a pessimist. तो it shows that some political affiliation was there, which is a different thing altogether. दूसरी बात है कि उसके बाद जो आए ना गवर्नर्स आरबीआई के, शक्तिकांत दास इज द गवर्नर राइट नाउ। हु इज द गवर्नर राइट नाउ? यस प्लीज चेक आउट ना, डोंट जज मी कि मैं आपको याद नहीं है क्या। आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरे को याद नहीं है। संजय
संजय मल्होत्रा, ही वॉज जस्ट चेंज आई थिंक 6 months बैक। उसके पहले शक्तिकांत दास था, ठीक है ना। और उसके पहले, उसके बदले कौन आया था राजन के बदले? हाँ, उर्जित पटेल। हाँ, सो बेसिकली सुनना प्लीज, यहाँ पे इट्स गुड दैट आप लोग का थोड़ा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नॉलेज भी इंक्रीज हो, बिकॉज मार्केट्स में अप्रोच करेंगे ना तो मार्केट्स में केवल किताब पढ़ने से होगा नहीं। द गवर्नमेंट फाउंड दैट अगर उनको कुछ चाहिए ना, जैसे वो लोग कुछ करना चाह रहे हैं इकोनॉमी के लिए, तो उनको सेंट्रल बैंक का सहारा चाहिए। अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक कुछ और कर रहा है, तो अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड, ठीक है। तो सो दे वांटेड द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो उन्होंने ऐसे ऐसे पर्सन्स को अल्टीमेटली बैठाया जो उनका बात माने। ये फैक्ट है इफ यू आस्क मी। तो फ्रॉम अ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आस्क मी सर इंडिया में डू यू थिंक आरबीआई प्योरली इंडिपेंडेंट है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पा रहे? जैसे बहुत सारे पेरेंट्स है ना, मैं बोलूंगा एज अ पेरेंट, मैं अपनी डॉटर या सन को बहुत इंडिपेंडेंस दे रखा, वॉट एवर दे वॉन्ट, ओके, कुछ उम्र के बाद वो होना भी चाहिए, बट क्या होता है, ट्रूली इंडिपेंडेंट है क्या वो लोग? तो बात आ रहा है कि मेरे को नहीं लगता है इंडिया में आरबीआई ट्रूली इंडिपेंडेंट है। जैसे जो इलेक्शन का डिफीट मोदी जी का हुआ, डिफीट ही बोलेंगे कि बीजेपी डिड नॉट विन द सुपर मेजॉरिटी दिस टाइम ना, तो ऑल्दो दे आर इन पावर, इससे एक लर्निंग हुआ कि यार अल्टीमेटली ग्रोथ कराना पड़ेगा इकोनॉमी का। तो अभी फुल शॉट जीएसटी कट जो हुआ, जो इनकम टैक्स कट हुआ था लास्ट बजट में, उसके बाद आरबीआई ने जिस तरह से रेपो रेट कट किया है, सीआरआर कट किया है, माने द वे इन विच फुल गन्स आर बीइंग फायर्ड इन इंडिया टुवर्ड्स प्रोपेलिंग द इकोनॉमी, की इकोनॉमी का ग्रोथ हाई होना चाहिए। यू मे नॉट बी अवेयर, बट इस तरह से गन फायरिंग हैज नॉट हैपेंड इन इंडिया। द फिस्कल इज इन फुल फोर्स, द मॉनेटरी इज इन फुल फोर्स, मतलब रैम्पेंट एक्सपेंसिव पॉलिसी जो है वो लगाया जा रहा है स्लो डाउन से फाइट करने के लिए, एंड इट्स हैविंग इट्स इफेक्ट ऑल्सो। On the other hand, independent monetary policy कहाँ होता है? When you hear statements by Trump, क्या? I think Jerome Powell should be fired. He's become too old. मैंने अपने हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आता, कोई लिमिट नहीं, बुढ़ा हो गया है, निकाल देना चाहिए उसको, कुछ चल रहा नहीं, उसका दिमाग ऊपर माला खाली है। पर when it comes to हिंदी तो समझ में आता ना वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है वैसा ही स्टेटमेंट्स है। Now if you are putting so much of pressure on that guy, this is you are really hurting independence। टोटल फाइट है जहां पे वो बोल रहा है कि मैं प्राइस स्टेबिलिटी को देखूंगा, ट्रम्प बोल रहा है प्राइस स्टेबिलिटी छोड़, तुम ग्रोथ को देख। दे आर नॉट ऑन द सेम थिंग। इंडिया में ये लोग फाइटिंग मोड में नहीं है, ये जरूर मानना पड़ेगा। ये सारा मैंने क्यों बोला? आई एम नॉट अ पर्सन हु ट्राइज टू डाइवर्ट। अगर मैं बीच में कतरीना कैफ का भी नाम लिया क्लास में, इट हैज टू बी कंटेक्चुअल। आई डाइवर्टेड बिकॉज देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंडिपेंडेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये नेक्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा है और इस चैप्टर में भी एलओएसए में टच किया हुआ है, तो मल्टीपल चॉइस रॉन्ग हो जाएगा। इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक का मोटा मोटी मतलब हो गया, सेंट्रल बैंक इज अलाउड टू डू व्हाट इट फील्स लाइक डूइंग, ओके, इट इज गिवन द ऑटोनॉमी। while non-independent या less independent central bank in which government influences what central bank does. If you ask me practically, I am in support of basically the a coordination between the government and the central bank, provided the government is doing good for the people. तब खराब कर रहा है तो उसके इसमें गड़बड़ है ना, ठीक है। So independent central bank का ये बात कहीं पे आएगा, okay, just write a note to that. Okay, सुवोजित सेन कुछ बोल रहे हैं, आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। बट यूएस में जेरोम पावेल वर्सेस ट्रम्प कंट्रोवर्सी था रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट कट। इज इट डिफरेंट दे? आई मीन लगता है मैंने जो बाद में बोला वो पहले से आ गए थे। आई सेड लेटर ऑन, ही रोट पहले। हाँ, नोट लिखो। इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, in the next chapter on monetary policy, comma, you will find in the next chapter on monetary policy, comma, you will find that government and central bank is often used interchangeably. Government and central bank is often used interchangeably. I hope the word is okay. Government and central bank is often used interchangeably. पर interchange कर देते हैं, जहाँ central bank लिखना है वहाँ पे government लिख देते हैं, तो be prepared for that. डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग, इंटरचेंजेबली का स्पेलिंग वगैरह रॉन्ग स्पेलिंग लिखो, बेस्ट है, ठीक है। एंड इंटरचेंजेबली के बाद
full stop. In fact, comma, there is a elaborate discussion. There is an elaborate discussion on के बाद open inverted comma, independence of central bank. Independence of central bank, close inverted comma, to achieve credibility. ये वहां पे इलैबोरेट होगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूं अपने तरीके से. कौन सा ऐसा एंकर है, न्यूज एंकर, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में? अर्नब गोस्वामी जो है वो किसका पपेट है? मोदी गवर्नमेंट का. फैक्ट है वो. जितना भी आई डोंट फेवर द मोदी गवर्नमेंट, आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक, पर वो है. और दुनिया जैसे चलता है, वी शुड एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. तो इसका मतलब अर्नब गोस्वामी जब कुछ बोलता है तो पीपल हु नो दैट ही इज बायस्ड टुवर्ड्स द मोदी गवर्नमेंट, तो अर्नब गोस्वामी का क्रेडिबिलिटी कुछ बोले हुए पे हर्ट होता है कि नहीं होता है? होता है. दैट इज द मीनिंग, दैट क्रेडिबिलिटी इज हर्ट. सपोज मैं कोई वेबिनार ले रहा हूं जहां पे मैं CFA का बहुत बड़ाई कर रहा हूं. द फैक्ट रिमेन्स दैट सिंस आई एम टीचिंग क्लास फॉर CFA, therefore people who are listening to me, somewhere they are feeling at the back of the mind that sir is talking about CFA, sir इतना बड़ाई, because ultimately he is gaining from it. That is also a loss of credibility. Okay, but there are issues which cannot be tackled otherwise. अंडरस्टूड. तो क्रेडिबिलिटी वहां पे बात आता है. अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के पूरे कब्जे में है ना, तो बोलते हैं सेंट्रल बैंक फिर अपना क्या कर रहा है? वो तो गवर्नमेंट वोट जीतने के लिए जो करेगा, सेंट्रल बैंक कोऑपरेट करता रहेगा. अल्टीमेटली हाई फाई इन्फ्लेशन हो जाएगा. गवर्नमेंट क्या चाहता है? वोट आए. वोट आने के लिए लोगों को खुश करो. लोगों को खुश करने के लिए उन लोगों को पैसा दो, उन लोगों का टैक्स कम कर दो. समझा? उन लोगों को पैसा बांटो ना, हेलीकॉप्टर मनी. ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर जाएगा और पूरा गांव में पैसा उड़ेगा, तो इन दैट केस वोट तो आएगा ही ना. और वो नोट जो है कौन प्रिंट करेगा? काश आरबीआई प्रिंट कर दो. हाँ कर ले. तो उससे क्रेडिबिलिटी हर्ट होता है. वी डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन. इंडिपेंडेंस तो यानी कि कम से कम थियरी वाइज ये लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक होना चाहिए. ठीक है. प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि गवर्नमेंट पे कितना भरोसा है तुमको. ठीक है. ओके. क्या बोल रहा है आरव जैन? मोदी अभी काट रहा है टीआरपी के लिए. वो अर्नब भाई मोदी के अगेंस्ट पे बोल रहा है क्या? हाँ, वो भाई बहुत अगेंस्ट पे बोल रहा है टीआरपी के लिए. ओके. ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्रेडिबिलिटी एंड ऑल दैट. अंडरस्टैंड दैट ये नेक्स्ट चैप्टर में होगा. देयर मे बी सम पीपल हु विल टेक अ पिक ऑफ दिस एंड पुट इट इन द टेलीग्राम कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया. ऑल्दो वी विल रिप्लाई, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच विल हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर ओनली. LOSB is roles and objective. It happens. Roles and objectives of fiscal policy. तो ये हो चुका है अपने को याद है. तीनों रोल्स है ना. फर्स्ट वाला, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, स्टेबलाइजेशन. via counter cyclical aggregate demand management. ब्रैकेट में थर्मोस्टैट एनालॉजी. तो आई थिंक ये वर्ड से आपको ज्यादा याद आ जाएगा. सर थर्मोस्टैट का बात कर रहे थे कि टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया, हीटर चालू हो जाते हैं, वो वाला थर्मोस्टैट एनालॉजी. ब्रैकेट क्लोज. सेकंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ.
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ब्रैकेट में सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कॉमा अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन कॉमा वेलफेयर, वेलफेयर स्कीम्स। तो इसमें तीनों में लेट्स नॉट बी सुपरफिशियल, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, जिन लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, उन लोग को फूड मिलना चाहिए। ये इंडिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जोर जोर से हो रहा है। दैट्स द वेलफेयर स्कीम, ठीक है। रिटायर्ड पर्सन को पेंशन मिलना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट पार्ट, सोशल सिक्योरिटी। और जो रिसेशन की वजह से अनएम्प्लॉयड है, उन लोग के वो मनरेगा का नाम चेंज किया ना, अभी कितना लोचा हुआ था। अरे वो क्या नाम चेंज किया, राम के नाम पे। हाँ, व्हाट डिड दे चेंज? कोई तो बोलो। हाँ जी, राम जी। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन वाला है, जिसका नाम मनरेगा था महात्मा गांधी के नाम पे। दे चेंज द नेम टू जी राम जी, ठीक है। सो द कांग्रेस पीपल स्टार्टेड शाउटिंग, देखो वो क्या कर रहे हैं, लोग जानबूझ के राम ला रहे हैं, ठीक है। एंड द बीजेपी पीपल सेइंग दैट महात्मा गांधी जी तो खुद ही राम जी करते थे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। थर्ड बुलेट क्या था? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो मैंने डिफेंस का एग्जांपल दिया, ठीक है, डिजिटाइजेशन का बोला, एलोकेशन, यूएस का बात की अपने इनटू एआई, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी सी, अगर अपने कुछ क्वेश्चंस कर पाए तो थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। तुम इसको फुल करके ऊपर दो। हाँ, घुमा के किस तरह से घूमेगा? रुको। ठीक। ओके, सो वी आर गोइंग फॉर सम क्वेश्चंस। देखो, स्क्रीन दिखाना पड़ेगा, फुल स्क्रीन। अभी स्टेटस क्या हुआ? वो टेलीविजन ऑफ है। वहां नॉक कर दो ना एक बार, पीछे नॉक कर दो, जस्ट नॉक कर दो। या लाइव वालों को स्क्रीन दिख रहा है, बट जो फेस टू फेस बैठे हैं उन लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। लाइव वालों का आंसर भी आ गया है। आप लोग साइड से देखिए। नहीं, जीपीटी क्यों? जीपीटी का रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें तो यार। हनी चंचलानी का करेक्ट आंसर, पारुल, विवेक, हर्षा, कृष्टि, शुभकांत, स्वप्निल, देवांश, आज सब जोश। नहीं, देवांश बंसल का रॉन्ग है, केवल देवांश बंसल का रॉन्ग है। जिसका रॉन्ग है मैं उसको बहुत इज्जत से बोलता हूँ, ठीक है। देवांश बंसल का रॉन्ग है। ये वाला टीवी चालू कर दे, लोग को दिख नहीं पा रहे ना उधर से। बाकी चीज बंद नहीं हो जाए इसकी वजह से, चांस होने का। ये लोग सह लेंगे, मैं मुंह से बोल देता हूँ, भाई रहने दे तुम, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। पहले तो बता दूं कि 2 फाइल शेयर होता है आजकल क्वेश्चंस का। एक फाइल जो है ना ऐसा होगा जिसमें यू विल फाइंड 1 लाइनर क्वेश्चन है, और 1 लाइनर क्वेश्चन के बाद 1 लाइनर टाइप आंसर है, ऐसे 1 लाइनर टाइप आंसर। ये CFA इंस्टीट्यूट का औकात हो गया, एकदम मजा नहीं आता है, ठीक है। एक दूसरा फाइल शेयर होता है आजकल, थोड़ा क्वेश्चन का डेप्थ ज्यादा दिख रहा होगा क्वांटिटी वाइज, एक्सप्लेनेशन में तो बस कोई लिमिट नहीं है। ये जो है जीपीटी का औकात है,
बट जीपीटी को पूरा स्ट्रिक्ट प्रॉम्प्टिंग दिया गया है, ठीक है, टू रिमेन विद इन द करिकुलम, विद इन द ऑथर्स लैंग्वेज, विद इन द कॉन्टेक्स्ट. And you will find that when you are preparing at home, you will like the second file का question more than the first file का. अब इसमें stupid doubt क्या होगा, बट सर एग्जाम में तो CFA इंस्टीट्यूट टाइप का आएगा ना, भाई मत. The point is to internalize, understand ना, उसमें क्यों compromise करें. तो you will find दो फाइल शेयर किया जाएगा, ठीक है. तो the second file is always better, the one which has bigger questions and all that, ठीक है, बिकॉज दैट विल समथिंग दैट यू विल फाइंड दैट. जैसे कोई कोर रीडिंग रीड नहीं कर रहा है और एक्सप्लेनेशन रीड कर ले रहे हैं आंसर्स का, इफ यू आर रीडिंग द आंसर्स, तो ये कोर रीडिंग का बाप है ये आंसर्स का जो एक्सप्लेनेशन है इन द ऑथर्स लैंग्वेज. गॉट इट? ठीक है. सेकेंड फाइल को खोला है मैंने, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप लोगों को सुनना पड़ेगा, ठीक से दिख रहा नहीं होगा इस साइड में, ठीक है. एन इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक in country X, independent central bank बोला, in country X conducts monetary policy with minimum government interference, while the central bank in country Y acts primarily as an agent of the government. Which of the following best describes the primary distinction between these two central banks? A. Country X का central bank focuses on redistribution of income. क्या monetary policy का objective redistribution है? नहीं. तो एकदम गलत जा रहा, आगे रीड ही नहीं करना चाहिए. कंट्री एक्स कंट्री वाई से मतलब ही नहीं है. सेंट्रल बैंक डज नॉट लुक एट रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन. नंबर बी, कंट्री एक्स का सेंट्रल बैंक मैनेजेस फिस्कल पॉलिसी डिसीजंस. रॉन्ग. सेंट्रल बैंक क्यों फिस्कल पॉलिसी मैनेज करेगा? you shouldn't read further. C, country X's central bank can influence the quantity of money and credit independently. कंट्री एक्स में जो सेंट्रल बैंक का वो मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट को इंडिपेंडेंटली अप डाउन कर सकता है, while country Y's central bank implements policy under direct government control. कंट्री वाई का सेंट्रल बैंक भी करेगा मनी सप्लाई, बट अंडर हुज कंट्रोल? गवर्नमेंट्स कंट्रोल. तो ए एंड बी वैसे ही रूल्ड आउट था, बिकॉज ए एंड बी आर लैंग्वेजेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी. द आंसर इज व्हाट? सी. Okay, some students who are beginners to CFA level 1 multiple choice solving, they feel that जब क्वेश्चन ऊपर स्टार्ट होता है, क्वेश्चन पूछा है which is the odd one out, बता रहा हूं मैं, और तीनों में से आंसर कौन सा आता है जो अलग सा भिन्न लग रहा है. तेरे से कौन पूछा भिन्न आंसर देने के लिए? ठीक है ना, तो इट हैज टू बी कॉन्टेक्चुअल. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. The government of country Z is considering policy actions to address rising income inequality within its economy. Rising income inequality, उसके लिए policy. Which of the following policy approaches would be most appropriate for this objective? Number A, using monetary policy. आगे read नहीं करना चाहिए. Monetary policy is not there for income inequality. B, using fiscal policy. सही जा रहा है. Through changes in taxation, progressive tax and government spending programs, मैं बताऊंगा अभी, to redistribute income and wealth. ये जो लैंग्वेज था using fiscal policy through changes in tax, आप समझ गए. GST का जो रेट्स है सारे कमोडिटीज पे सेम है कि अलग है? अलग है. जो नेसेसिटीज होते हैं बेसिक, उनमें GST का रेट कम है, और डायरेक्ट टैक्स पे प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है. ठीक है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ टारगेटिंग इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाया टैक्सेशन. गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रोग्राम जो है ना, उसमें सुनना मेरा बात सुनना, गवर्नमेंट खर्चा किया 3 चीज के लिए. लुक, लिसन टू माय लैंग्वेज. नंबर 1, टू बिल्ड समथिंग. एयरपोर्ट बनाया, ठीक है, कैलकाटा में नया एयरपोर्ट खुला इधर साउथ साइड में, तो अपने को उधर जाना नहीं पड़ेगा. नंबर 2, गवर्नमेंट जो है स्पेंड किया टू सस्टेन समबडी, टू sustain somebody, to support somebody. Number 3, government spend किया to buy goods and services, यानी कि उसको काम करवाना था ट्रैफिक पुलिस का लोगों से, तो अकॉर्डिंगली ट्रैफिक पुलिस हायर किया. दैट्स अ सर्विस इट हायर्ड. या गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स हायर किया, उसको पे किया. पहला बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड सस्टेन मतलब सपोर्ट, और तीसरा हो गया स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, करंट गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो ये 3 तरह का स्पेंडिंग गवर्नमेंट का, चौथा तरह का है ही नहीं. तीनों में से विच वन विल नॉट इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी? सस्टेन वाला. जो मुफ्त का दे रहे हैं ना पैसा, वो काम के बदले नहीं दे रहे हैं. जीडीपी मतलब काम. देयर हैज टू बी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस.
There has to be some production of good or service. If I am paying you, you are paying me because I am teaching. This is GDP. Understood? But if you are paying me because you have passed the exam, कोई आएगा और वो रसगुल्ला का पैकेट देगा मेरे को, वो GDP नहीं है. बट सर रसगुल्ला का पैकेट जो वहां से बिक्री हुआ, प्रोडक्शन हुआ, वो तो है ना, वो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट है, वो अलग बात है. बट अदरवाइज इफ somebody is paying me say 50,000 भेज दिया सर, हम बहुत खुश हुए, पास हो गया, ऐसा होता नहीं है. ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए. तो इन दैट केस दैट इज अ ट्रांसफर पेमेंट. व्हाट इज इट? ट्रांसफर पेमेंट. तो गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट करता है. ठीक है, ऑल द सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट इज ट्रांसफर पेमेंट. और उसके अलावा गवर्नमेंट जो पुलिसमैन को देता है, एजुकेशन हेल्थ केयर में स्पेंड करता है, दैट इज करंट स्पेंडिंग. व्हाट स्पेंडिंग? द करंट स्पेंडिंग इज टू इंक्रीज द करंट प्रोडक्टिविटी एंड स्किल्स एंड टू मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर. इज फॉर फ्यूचर प्रोडक्टिविटी. इज फॉर फ्यूचर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी में काउंट होता है, करंट स्पेंडिंग जीडीपी में काउंट होता है, पर ये जो ट्रांसफर पेमेंट है ना, ये जीडीपी में काउंट नहीं होता है. ठीक है ना? ओके. पॉइंट नंबर सी क्या था? डायरेक्टिंग द सेंट्रल बैंक टू एडजस्ट इंटरेस्ट रेट्स टू डायरेक्टली ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम हाई इनकम टू लो इनकम. ऐसा नहीं होता है, इट डजंट हैपन. ठीक है, तो आंसर इज व्हाट? बी. जो सेकंड और थर्ड फंक्शन था फिस्कल का ही है केवल. कौन सा? रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट? एलोकेशन. उसमें मॉनेटरी का नहीं है कुछ. क्वेश्चन नंबर 3. An economist is advising policy makers in country M, where the economy has begun to overheat with rapidly accelerating growth and rising inflation. Slow करते हैं. There's a country M, उसमें जो policy makers है ना, fiscal and monetary policy makers, उनको एक economist advise कर रहे हैं. Where the economy has begun to overheat with rapidly accelerating growth and rising inflation. कि इकोनॉमी का क्या कंडीशन है, थर्मोस्टैट का टेम्परेचर क्या है ना, वो बता रहे इकोनॉमिस्ट. ठीक है. द ओवरआर्चिंग गोल ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क इज टू मेंटेन एन एनवायरनमेंट वेयर ग्रोथ इज स्टेबल एंड पॉजिटिव. जो लिखा है मैंने, पॉजिटिव स्टेबल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इज स्टेबल एंड लो. लो स्टेबल इन्फ्लेशन. लुक एट किस तरह से जीपीटी ऑथर का लैंग्वेज पिकअप कर रहे हैं, बिकॉज उसको प्रॉम्प्ट वैसा ही दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड बी मोस्ट कंसिस्टेंट विद दिस गोल? ये अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? A. Use monetary and fiscal policy to accelerate economic growth further to maximize employment in the short term. लिखा हुआ था ओवरहीट हो गया है, ओवरहीटेड इकोनॉमी है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन. तो बोल रहा है वी शुड यूज मॉनेटरी एंड फिस्कल टू एक्सेलरेट ग्रोथ फर्दर, और ओवरहीट कर दो टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट टर्म. माने टेम्परेचर थर्मोस्टैट का 26 डिग्री पहुंच गया है, और टेम्परेचर बढ़ा दो, हीटर चालू कर दो. B. Avoid any policy intervention and allow the economic boom to continue naturally until it corrects itself. तो बोल रहा है कुछ मत करो, थर्मोस्टैट को अपने आप कूल होने दो. We'll discuss about this. तीसरा, use monetary and fiscal policy to moderate growth and economic activity to prevent extended periods of instability. Answer is obviously what? C. ठीक है, कि अपने को इंटरवीन करना चाहिए, अपने को काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट. यानी कि नंबर 1, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा जिससे लोग कंज्यूम कम करें, डिमांड कम हो. एट द सेम टाइम सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट जो है खर्चा कम कर देगा, स्पेंडिंग कम कर देगा, टैक्सेशन को क्या बोलते हैं, इंक्रीज कर देगा, टैक्सेशन को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज, सो दैट लोगों का इनकम कम हो जाए, खर्चा कम कर पाए. मतलब वी हैव टू कूल डाउन द इकोनॉमी. ये वाला पोर्शन किया नहीं हमने, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, वैसे प्रॉपरली किया नहीं बिकॉज ये आगे वाले एलओएस से कनेक्टेड है, बट इसमें वो वाला पार्ट आ गया स्टेबलाइजेशन वाला. एंड वो जो था ना, जो नोट में लिखाया मैंने कि बोथ द ऑब्जेक्टिव्स, बोथ द पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है पॉजिटिव स्टेबल ग्रोथ एंड व्हाट? लो स्टेबल इन्फ्लेशन. तो काउंटर सिक्लिकल से रिलेटेड. आंसर कौन सा है? सी. जो बी है ना, बी, इट रिक्वायर्स सम डिस्कशन. लेट मी डू दैट. देयर आर 2 schools of thought. Listen carefully. Full screen करना. There are 2 schools of thought. One is that I remember when my daughter was 2 years or 3 years old, तो young learners वगैरह में उसको भर्ती कराने गए थे. ठीक है, before this thing. तो when the other person was talking to us, she was playing and she was about to fall. ठीक है. So within the interview only, I got up to just catch her hand कि गिर नहीं जाए. तो she told me let her be. The other person, young learners की, बिल्कुल बोली let her be. ये मैं यही वाला बात बोला, let her be वाला पार्ट. इकोनॉमी को let it be.
इकोनॉमी इज अ सेल्फ सफिशिएंट एनिमल जो अपने आप ही बैलेंस कर जाएगा। होता है ना कई बार, किसी उसको छोड़ दीजिए अपने आप ठीक हो जाएगा, आप उस पर कुछ मत कीजिए। और एक होता है नहीं सर, वो जब तक ठीक होगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा, जोर से लग जाएगा चोट, आप संभाल लीजिए। ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हो गए, वन इज हैंड्स ऑफ अप्रोच एंड द अदर इज इंटरवेंशनिस्ट, और हम लोग बोलते हैं उसको डिस्क्रिशनरी अप्रोच। व्हाट अप्रोच? डिस्क्रिशनरी अप्रोच। ये दो अप्रोच होते हैं और दोनों में मेजर डिबेट है। जो लोग फर्स्ट अप्रोच बोलते हैं ना, फर्स्ट अप्रोच कि नहीं हैंड्स ऑफ आप छोड़ दीजिए, वो लोग ये बोलते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स है ना, मोदी जी जो अमित शाह जो है, ये संजीव मल्होत्रा जो है, उनके पास कौन सा वो लोग भगवान विष्णु हैं कि उनको पता है इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। उनके पास जो डेटा आ रहा है, डेटा टाइमली आता है कि डेटा लैग से आता है? लैग से आता है। डेटा ऑलवेज कम्स विद लैग। GDP numbers are reported after 3 months. Understood? Data comes with lag. Data comes with error. It is statistics. Data comes with errors. Plus अगर डेटा सही टाइम पे आ रहा है प्लस एक्यूरेट आ रहा है ना, तो भी there could be exogenous factors outside the control. अचानक से ट्रम्प आज रात को कुछ अनाउंस कर दिया, अब से ये होगा। तो कौन सा मॉडल है जो ट्रम्प का, क्या बोलते हैं उसको, सनक, हाँ, जो ट्रम्प के सनक को मॉडल कर पाएगा कि ट्रम्प का जो बिहेवियर है उसको मॉडल कर दिए एआई में, मशीन लर्निंग में, उसको बोले थे बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर। जितना ही मॉडल बना दो, देयर विल बी एरर टर्म ना। सो इसका मतलब ये बोला जाता है कि पॉलिसी मेकर्स के पास रिकॉग्नाइज करने में ना कि क्या रिक्वायरमेंट इकोनॉमी में क्या चाहिए। एक पेशेंट है, एक तो होता है एक पेशेंट, उसको सर्दी खांसी हुआ है, तो कई बार होम्योपैथी डॉक्टर क्या बोलेगा, कुछ मत लो, अभी थोड़ा घरेलू मेडिसिन जरा सा ध्यान दो, पर कोई मेडिसिन मत लो, अपने आप ठीक हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? अपने वही वाला बात कर रहे हैं। दूसरा होता है एलोपैथी, बोल रहे नहीं ये ले लो। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट प्रिस्क्रिप्शन वर्क्स व्हेन, बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिबेट इन द चैप्टर ऑन द सेम। ठीक है, तो देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स, इट्स नॉट वन वे स्ट्रीट। हर चीज में प्रॉस एंड कॉन्स होगा, और ये रियल लाइफ का स्थिति है, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों का। ठीक है, तो ये बी उसके बारे में बोल रहा था, लेट इट बी। तो चैप्टर बोल रहा है नो, वर्ल्ड हैज शोन अस दैट इन द लॉन्ग टर्म एवरीबॉडी इज डेड। बोले ना लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में जिंदा कौन रहेगा? तब तक इतना पेनफुल प्रोसेस कौन सहेगा? हैव यू हर्ड अबाउट 1930s का ग्रेट डिप्रेशन? पता नहीं किन्होंने सुना होगा। 1930s में यूएस इकोनॉमी सफर्ड थ्रू अ पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जहां पे लेबर इज देयर टू वर्क, machines are there to produce, but labor is not able to work, machines are not able to produce because demand is not there. What is not there? Consumers are not demanding, they have become pessimistic, कोई खर्चा नहीं करना चाह रहा है, तो डिमांड ही गुड्स का नहीं होगा तो प्रोड्यूस क्या करेगा? ठीक है, तो उस समय कीन्स, लॉर्ड मेयर्नर्ड कीन्स, you must have heard his name, he said that aggregate demand is not only C, it is C plus I plus G. What is the third part? G. अगर C कम हो गया है तो G बढ़ा दो ना। Why can't the government spend? The government should build infrastructure, नया रोड्स जब गवर्नमेंट बिल्ड करता है तो सीमेंट बाई करता है, लोगों को एम्प्लॉय करता है, वो पैसा उन लोगों के पास गया, वो लोग फर्दर खर्चा करते हैं, the economy has a multiplier effect. So government cannot remain a passive onlooker and allow the bleeding to happen. It has to intervene discretionary basis पे. That's option number C. ठीक है, use monetary and fiscal policy to moderate growth and economic activity to prevent extended periods of instability. Okay, just one second. Question number 4. An economy is comparing the fiscal position of 3 countries. An analyst is comparing the fiscal position of 3 countries. So now, country P has central government debt equal to 185% of GDP. India का उससे कम ही है. The last I know, India का national debt is around maybe 90% of GDP. Check करो एक बार. India's national debt as a percentage of GDP. साथ में US का भी चेक करना. No, not the amount, the percentage of GDP. Percentage of GDP, national debt to GDP ratio in India. R.F. Jain is saying 85%. 80-85% है, मैं 90 ज़्यादा ही बोल दिया. ठीक है, US का?
यूएस का दिखा रहा है 125%, ये बोल रहे हैं। ओके, मैंने एग्जैक्ट फिगर तो 80-82 है, वहाँ का 125% है। ठीक है, जापान का भी चेक कर लो एक बार। अभी जापान में इलेक्शन हुआ था तो नया गवर्नमेंट आके बहुत जोश में आया खर्चा करने में। जापान, बी इंटरेस्टेड प्लीज इन द डिस्कशन। 240% ऑफ जीडीपी। तो तीन सिचुएशन लाइन से अपने सामने है। लुक एट नेशनल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, दैट्स एलओएस नंबर डी या ई है। वो बोल रहा है नेशनल डेट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इज ट्रैक्ड बाय एवरीवन। बिकॉज इसका मतलब हो गया कोई फैमिली है, प्लीज इमेजिन कोई फैमिली है, अपने अपार्टमेंट को इमेजिन करो, एक फैमिली है, अनाप शराब खर्चा कर रहा है, बाप रे बाप। तुम लोग एकदम आश्चर्य, ये लोग क्या हो गया है, ठीक है। एंड ये बोला हाँ सर हम लोग के है। एंड यू डिग डीपर एंड यू फाइंड दैट ये लोग का इनकम तो वही है, ये लोग बोरो करे खर्चा कर रहे हैं। तो इन दैट केस अपने बात कर रहे हैं कि अगर कॉमन सेंस बात कर रहे हैं, चलो इकोनॉमिक्स को छोड़ते हैं, शुड वी बी कंसर्न अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दैट फैमिली। मैंने इन दैट केस समझो तुम्हारा भी पैसा दिया हुआ उस फैमिली को, बिकॉज क्या फीलिंग आ रहा नहीं तुम्हारे में, लग रहा है कि राम कहानी चल रहा है, तुम्हारा ही पैसा दिया उस फैमिली को, शुड यू बी कंसर्न अबाउट इट। सब ने बोला यस। टेक्स्ट बोलता है नॉट नेसेसरली, टेक्स्ट बोलता है नॉट नेसेसरली, बिकॉज सब चीज में प्रोस एंड कॉन्स है। तो अब मैं ऐड करता हूं लेयर। फैमिली जो खर्चा कर रहा है किस चीज में, वो तो आप लोग सुने ही नहीं थे, मैंने बोला भी नहीं। फैमिली खर्चा कर रहा है अपने चिल्ड्रन को हायर एजुकेशन देने में। क्या देने में? हायर एजुकेशन देने में। ओके, तो द चाइल्ड हैज गॉन टू हार्वर्ड टू स्टडी, और ब्रिलियंट चाइल्ड है, तो बोला अब ठीक है। तो द नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर मैटर्स, कितना एक्सपेंडिचर का नेचर है, डाइवर्सिटी ऑफ द इनकम मैटर्स। आज ये लोग 10-20 साल से पूरे का पूरा सऊदी एंड द गल्फ रीजन, दे हैव बिकम वेरी वरिड अबाउट द फैक्ट दैट हमारा क्या होगा जब फ्यूचर में तेल नहीं होगा तो। अरे ईवी आ गया ना। तो इन दैट केस फॉर द लास्ट 1 decade at least, or 1.5 decade, there has been extensive investment on diversification wherein they are not dependent on oil। ठीक है, तो they have extensively diversified कि हम लोग को ऑयल डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो डाइवर्सिफिकेशन कितना है इकोनॉमी में, ठीक है, डेमोग्राफिक्स क्या इकोनॉमी, बहुत सारे और फैक्टर्स भी है, तो दे मैटर अ लॉट। ठीक है, तो प्लस औकात। औकात का मतलब हो गया जो गांव का जमींदार है, पुराना हिंदी मूवीज, तो गांव का जमींदार जिसके पास लठबाज लोग है ना, यू नो ऑल गुंडे एंड ऑल दैट खड़े हैं, उनके पास बहुत ज्यादा डेट लिया हुआ, उनका पता चला तुमको, तो क्या हुआ, उनके पास वो दम है ना, दे हैव दैट कैपेसिटी। बट तुम छोटा सा झोपड़पट्टी वाला, तुम उतना डेट लेगा तो तुम्हारे पास औकात नहीं है। आई मीन टू से द बांग्लादेश एंड द श्रीलंका, if their debt crosses a certain percentage of GDP, it's a very big thing. Plus debt is owed to whom, it has to be seen। वो जो फैमिली था ना, पता चला उसका डेट सारा रिश्तेदारों से लिया हुआ है। किससे? रिश्तेदारों से। तो बोला घर का ही बात है। इसका मतलब अपना क्या हो गया, कंट्री का डेट इज टेकन फ्रॉम इट्स पीपल, यानी इट्स ऑल लोकल डेट। व्हाट डेट? माने इंडिया ने बाहर डेट इशू नहीं किया है। इंडिया हैज नॉट बोरोड फ्रॉम चाइना, जापान एंड ऑल दैट। यूएस हैज बोरोड। यूएस का ऑलमोस्ट 50% से ऊपर डेट इज फंडेड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय ऑल मेजर्स व्हाटसोएवर। यूएस में केवल एक ही पॉइंट है कि उन लोग का इतना पावरफुल वो है बेस कि बिकॉज ऑफ विच अदरवाइज कोई इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं करे यूएस जो कर रखा है। डेट इज exorbitant and debt is all externally funded. Understood? They have all the characteristics which are there of a weak economy, but still they are the strongest. ठीक है, तो अगर locally funded debt है तो टेक्स्ट बुक वाइज नॉट एन इश्यू। समझ गए क्या क्या लिखा है यहाँ पे? An analyst is comparing the fiscal position of 3 countries. Country P has central government debt equal to 185% of GDP. Government expenditure equal to 48% of GDP. कंट्री क्यों, वो क्यों बता रहे फालतू में, एक्सपेंडिचर से कंफ्यूज कर रहे हैं। बिकॉज एक्सपेंडिचर इज अ फ्लो वेरिएबल और अ स्टॉक वेरिएबल। फ्लो एक्सपेंडिचर जो हर साल होता है, डेट इज एक्यूमुलेटेड ना बैलेंस शीट आज तक का, और प्लस एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू बात करना चाहिए। व्हाट अबाउट द रेवेन्यू? तो आई डोंट कंसिडर दिस डेटा टू बी काम का। कंट्री क्यू हैज सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इक्वल टू 95% ऑफ जीडीपी, उसका 185 था।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू 32%, मेरे ख्याल से काम का नहीं है। मेरा क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है, बोल दूं मैं, I have not seen the question, seeing it in front of you. Country R has central government debt equal to 68% of GDP. बहुत ही disciplined. Government expenditure 23%. Based solely on these metrics, which country has the largest relative scale of government sector activity in its economy? Largest relative scale of government sector activity बोल दिया ना, activity तो flow variable होता है, तो उसके बाद तो एक्सपेंडिचर देखना चाहिए। इक्का 48, 32, 23, पर वो तो गवर्नमेंट पी का ही था और पी का एक्सपेंडिचर हाई था। लेट्स सी क्या दिया आंसर। पी बोल रहा है, क्या लिखा है, ऑप्शन पढ़ रहा हूं। द स्केल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एक्टिविटी इन इकोनॉमी कैन बी मेजर्ड बाय बोथ गवर्नमेंट डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, as illustrated in the reading. Country P has the highest value for both. 185% debt to GDP ratio, 48% government expenditure to GDP. Both indicators point to country P having the largest government sector related to the size of the economy. The reading emphasizes that government are the largest borrowers in world debt markets and that public sectors normally employ a significant proportion of the population and are responsible for a significant all that. ठीक है, तो बहुत easy question दे दिया, guess करते तो भी right ही होता। मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया जो गेस करने से भी अभी मन में क्या आ रहा होगा, किसी एक कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो हाई हुआ पर एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो लो हुआ, तो माने कंट्री पी का डेट टू जीडीपी रेशियो क्यू से ज्यादा होता पर कंट्री क्यू का एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो पी से ज्यादा होता। ये लोग क्या बोला है, टू मेजर कि गवर्नमेंट सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, वी विल लुक एट टू थिंग्स, नंबर वन द डेट टू जीडीपी रेशियो एंड नंबर टू व्हाट, द एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो। गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी पता लगाने का ये तरीका है, ठीक है, ये बोला है। अब जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं या तुम कर रहे हो तो डायरेक्टली तो वो क्या करना चाहिए, तुमको ये चीज जीपीडी पूछना चाहिए कि व्हाट इफ देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट कि one country has a higher debt to GDP ratio but a lower expenditure to GDP ratio, the second country has a lower GDP to debt to GDP but a higher this, then which will we conclude? Are you understanding? ये आप मेरे को भी डाल सकते हो नंबर पे, टेलीग्राम पे, कोई डाउट नहीं है, बट आपने जो मेरे को डाला ना वहां पे यू आर नॉट ट्राइंग टू ड्राइव योरसेल्फ, वो गलत है। और इंग्लिश का बात ही नहीं, हिंदी में पूछ रहा हूँ जीडीपी को ऑडियो में कि भाई ऐसा है, चैप्टर पढ़ रहा हूँ फिस्कल पॉलिसी, उसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर कितना इंपॉर्टेंस है, दो चीज पे डिपेंडेंट है, एक तो डेट टू जीडीपी रेशियो पे, एक एक्सपेंडिचर जीडीपी पे। पर अगर एक कंट्री का एक तो ज्यादा हुआ, दूसरी कंट्री का दूसरा ज्यादा हुआ, तब क्या करेंगे? और डिप्लोमेटिक आंसर मत देना, टू द पॉइंट देना। CFA 11 का पढ़ाई चल रहा है मेरा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अरे मैं बोलना चाह रहा हूँ लैंग्वेज का कहां से बात आ रहा है, ठीक है। एनीवेज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड LOS A and B, क्वेश्चन भी सफिशिएंटली किया नहीं है। मैं टोटल में जो फाइल शेयर करूंगा आपसे उसमें LOS A और B को मिला के देयर विल बी 20 क्वेश्चंस। हाउ मेनी? 20 क्वेश्चंस। 3-4 क्वेश्चन साथ में किए, 16 क्वेश्चंस आपको करने हैं। वो जो 16 क्वेश्चंस है उसका एक छोटा सा होमवर्क वीडियो शेयर होगा, इनकेस किसी को सुनना हो एक्सप्लेनेशन, बट प्लीज मत सुनना, यू डू इट योरसेल्फ विद द एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो सुनने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सिंस किसी को प्रॉब्लम नहीं हो जाए इसलिए विल शेयर द वीडियो, ठीक है। तो होमवर्क क्लास काम का नहीं होगा, ओके। सो दिस क्लास विल बी कंटिन्यूड ऑन फ्राइडे, हाँ ऑन फ्राइडे 10:30 AM, ठीक है। Do try to come if you can come, ठीक है। And those who have joined today, they can just stay for 5 minutes after the class gets over. I can guide them further. Bye.